morning everyone. How are you all? Today we will continue with explanation of chapter number 10, Reaching to the Age of Adolescence, session number 7. In last all sessions children, we have discussed about adolescence, puberty, changes in puberty, mental and physical and intellectual changes in an adolescence, that is a teenager. Then we have discussed about hormones, right children? So today we are going to discuss about reproductive health. Now when a male and female is about to reproduce, the health is also very important part. यानी जब मेल या फीमेल वो रिप्रोडक्शन कैरी आउट करना होता है, फीमेल में ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फीमेल ही एक चाइल्ड को बर्थ दे सकती है. So children, the health of the female child is important as well as male is also important as they are producing male gametes. So what all points we should keep in mind to keep our reproductive health, right? So first is balanced diet. कोई भी हेल्थ की बात आती है बच्चों तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? डाइट की तरफ, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड होती है. यानी हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो जितना काम कर सकते थे उतना हम नहीं कर पा रहे हैं. Why? That is because of food habits. They were eating healthy food. At present, our generation is eating fast food, which is just giving taste to our tongue, but it is not fulfilling all the nutritious requirement of our body. So balanced diet is a very important part for reproductive health. That is a first point for reproduction. Next, adequate physical exercise. अब ये जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है, हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाना जो है उसे डाइजेस्ट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो हमारे बॉडी को प्रॉपर्ली ग्रो करेंगे एट द एज ऑफ एडोलसेंस. जब ये पीरियड हमारी लाइफ से शुरू हो रहा है तो उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल फिटनेस रखेंगे, तो हमारा बॉडी का जो शेप है एंड इट विल कीप अस हेल्दी, राइट? वो जो हमारा खाना है उसे डाइजेस्ट करने में मदद करेगा. देन फैट्स को एक जगह पे जमा नहीं होने देगा, राइट चिल्ड्रन? सो व्हाटएवर वी ईट, द डाइजेस्टिव सिस्टम also improves, and this physical exercise helps to keep us fit and fine. Next, meals include protein, carbohydrates, fats and vitamin in requisite proportion. यानी आपका जो डाइट होता है, राइट, वो डाइट के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, वो सब न्यूट्रिएंट्स जाने बहुत जरूरी है. सो यू शुड ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट, मीट एक्सेट्रा, राइट? सो ये सब हमारे मील में इंक्लूड होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी. फॉर इन्फेंट्स, मदर मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट. यानी जो इन्फेंट बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए मदर मिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे फीड ऑन देम एंड इट गिव्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द infant, right? Next, iron builds blood, and iron rich food such as leafy vegetables, jaggery, meat, citrus fruit, Indian gooseberry etc. are very important. यानी जब ये रिप्रोडक्शन फेज होता है तब क्या होता है? खून की कमी होती है, राइट? तो वो खून की कमी को पहले से ही मेंटेन करने के लिए हमें आयरन रिच फूड खाना चाहिए. आयरन जो है वो हमारे ब्लड को बिल्ड करता है, वो बनाता है. So every day children, whenever you are passing through this adolescence age, that time also children, you should have good amount of iron intake in your body in the form of iron rich food such as leafy vegetables. हमें पत्ते वाली सब्जियां रोज खानी चाहिए. जैगरी गुड़ जो है वो हमें आयरन रिच आयरन देता है. मीट, सिट्रस फूड, इंडियन गूसबेरी यानी आंवला, वो सब चीजें हमें खानी चाहिए ताकि हमारे बॉडी में आयरन लेवल मेंटेन रहे, राइट? So children, this was about the health part. Next part is personal hygiene. Now hygiene means cleanliness of our
body. So first is bath every day, यानी हमें रोज बाथ लेना चाहिए. अगर हम बाथ नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या होगी, बैक्टीरिया से भर जाएगी, राइट. द बैक्टीरिया विल गेट अ suitable environment to grow in our body which is harmful to us. So bacterial infection will cause every now and then. So you should take bath every day. Next, walking and playing in fresh air keeps the body fit. अब खाना भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है, तो उसके साथ फ्रेश एयर भी बहुत जरूरी है. और जब हम वॉकिंग या प्लेइंग के लिए जाएंगे ओपन एनवायरनमेंट में, तो उससे क्या होगा, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में हम वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो जो फ्रेश एयर होती है मॉर्निंग की, वो हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करती है. सेकेंड थिंग, द सनलाइट विच इज फॉलिंग ऑन आवर बॉडी, राइट, दैट गिव्स अस विटामिन डी. सो ये जो सब चीजें होती हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए, राइट, एंड इंटरनल फिटनेस ऑल्सो ऑफ आवर body. So this was about personal hygiene, and the last part of the chapter which we are going to learn is say no to drugs. अब जब ये हमारा टीनेज का पीरियड चल रहा है तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो वो चेंजेस को टेम्पररी दूर करने के लिए हम मेडिसिन का यूज करते हैं ताकि हमें कुछ पेन ना हो, या तो फिर मूड स्विंग होता है तो हमें अच्छा फील हो. बट ऑल दिस थिंग्स आर एडिक्टिव. आपने एक दिन खाया तो दूसरी बार खाने का आपको मन हो जाएगा, एंड दिस एडिक्शन कैन क्रिएट मेनी हेल्थ इश्यूज इन सम पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. एड्स कॉज्ड बाय HIV. अब जब हम ये इंजेक्शन या तो फिर कुछ लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन से, तो वो इंजेक्शन समझो कि HIV पेशेंट यानी एड्स जो है वो ऐसी बीमारी है जो HIV वायरस से स्प्रेड होती है. इट इज अ ट्रांसमिटेबल disease. So if that injection is used for the healthy person, the injection which is used for HIV patient, और वो ही injections हम दूसरे healthy persons के लिए use करेंगे, तो वो वायरस तुरंत ही दूसरे पेशेंट को भी HIV दे सकता है. So we should avoid all these things, children. So pass on by sharing the syringe used by injecting drugs. अब जब ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए हम वो सिरिंजेस सेम पर्सन को यूज करते हैं, तो उन्हें भी ये HIV की बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है चिल्ड्रन. सो प्लीज अवॉइड ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ. सो विद दिस चिल्ड्रन we complete our chapter. In next session children we will continue with solution of this chapter. I hope you understood this chapter very well because it is a very important chapter, as on it is same adolescence period is going in your life at present as you are at the age of 13 and 14. Right children? Thank you and have a nice day children.